submission. ये एक माइंडसेट बना हुआ है कि जैसे औरत को किसी भी तरह से उसको दबाए, और तो मैं इससे सबसे पहले तो उसको मानसिक रोग, और वो रोगों के उत्पन्न होने के कारण बहुत बार जो खास करके होता है कि जब आप बेकार होते हैं, काम कुछ नहीं होता, उस समय औरत सामने दिखती है। लेकिन एक नया ट्रेंड जो चला है, उस ट्रेंड में उस औरत की बढ़ते हुए कदम को नहीं देख पाते और लगता है कि उसको रोकने का यहीं पर प्रयास किया जाए। अभी जैसे पंचायत का एक मामला है कि सरपंच है, यंग है, एक है ओल्ड है, लेकिन उन दोनों को रेप किया केवल इसलिए कि वो आगे नहीं बढ़ जाए। So the whole society grooms itself to see that the women are, not somebody to be cared for, and so rape is like fun for them. It's just fun. We don't give girls the same status at home. It's because we have no respect for girls and women. The moment they are born, still with the placenta and still with the umbilical cord on, the child was just dropped into water, with the result that the whole process of watching a female child die. Where the female ratio is so adverse, naturally it has implications. I believe a rapist rapes because he has some suppressed sexual desires. Most probably he is not getting it at home, or most probably it is something from a childhood trauma. Sometimes it's also revenge, jealousy towards another man, or revenge for another man. So if we destroy their woman, if we defame their woman, the thing comes out that we have taken revenge from the man. People are very repressed. Parents must realize that instead of suppressing, sexual feelings in the kids, it's the most natural thing in the world, and they should educate them so that they understand what it's all about. क्राइम में और एजुकेशन में डायरेक्ट लिंकेज है। हमारे यहाँ जो आप दिल्ली का अगर एग्जांपल लें तो दिल्ली में हमारे यहाँ 40% से ज़्यादा लोग जो है टोटली इलिटरेट है। मेरे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, 76 का केस, बलात्कार। सन 97 का केस है मैडम। ये मैडम मैं ऐसा है, यहाँ रहता था उस्मानपुर दूसरे पुश्ते पे, लड़की को यहाँ से भगा के लेकर आए। They don't have toilets in their home when they go out. That is the time they get raped, and they are abducted on the way, and this is something which is a large scale phenomena. हमारे माँ बाप थे, उन्होंने पूछा हमसे कि ये क्या है, तो हमने उनसे झूठ बोला कि मैं शादी करके लाया हूँ। सरिता ने कुछ नहीं बोला, वो सब कुछ सहती रही। हम 3 महीने तक उसका लगातार बलात्कार करते रहे। This person who raped, he had in fact assaulted several girls. Many rapes are serial rapes. I think one of the major reasons are the large number of people coming from all over India to find a living here. They come from very different cultural backgrounds and get a culture shock when they come to the city. I think it's their mentality that is to be blamed. हमारा तो बिहार खाली ऐसे ही बदनाम है, हाई वहाँ पे जो है बेरोजगारी है, इसलिए बंदे करते हैं। लेकिन दिल्ली इतना गंद कहीं नहीं है। ये दिल्ली का गंद जो है ये प्रशासन के बस में नहीं है कि ये हटा सकती है। वही एक को मारेंगे 10 पैदा हो जाएंगे। Delhi in any case has a very severe adverse ratio, as you know. The national ratio for the male-female population is something to every 1,000 males there are 927 or 930 females, but in Delhi this is less than 830, which is very significant. जैसे ये धोला कांड हुआ है, धोला कुआ कांड हुआ है, एक और गाड़ी का कांड हुआ है, उसमें क्या लड़कियां जो कॉल गर्ल्स हैं, रात को रोड पे किसी लिए खड़ी होती हैं, वो गाड़ी में, वो गाड़ी में उनको बैठाते हैं, बैठने के बाद जो 4 लड़के इकट्ठे हैं, 4 लड़के सेक्स कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो पैसे के लिए उनका मनमुटाव हो जाता है। एक वेश्या को भी रेप करने का अधिकार आपको हासिल नहीं है। अगर वो सेक्स वर्कर है, वो देह व्यापार करती है, तो भी वो अपने टर्म्स पर करेगी। आप उसको रेप नहीं कर सकते, आप उसका बलात्कार नहीं कर सकते। One of the things that can break down these attitudes is a co-educational education. I think the only thing that needs to be really sure is that every girl child goes to school. And it will take a while for Indian society to mature, to grow up, to evolve. We're still in that stage of infancy. मैं दिल्ली पुलिस में नौकरी करता था, तो हमारे ऊपर एक आरोप लगाया गया रेप केस का, और उसमें हमें सजा हो गई। जो रेपिस्ट होते हैं, इनकी एक मक्कारी होती है इनमें, तो इन लोगों से तो आप मक्कार आदमी से तो आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सच बोलेगा। लड़की को उठा के ले गया था टर्म के अंदर, इसके माँ बाप से मिलाने के लिए ले गया, तो ऐसे लड़ाई झगड़े के अंदर वो लड़की के उंगली लग गई इसके लिंग के अंदर। बस यही गलती हुई मेरे से। They believe that
if they keep on with this position, sooner or later they'll be let out of the jail. कुछ लोगों ने आगे अपील किया होता है कन्विक्शन के बाद भी, उनको ये रहता है कि शायद अगर मैं ये सारा बोलूँगा तो अपील में मुझे कुछ बेनिफिट नहीं होगा। हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं, हमारा केस से कोई लेना देना नहीं है, ना हम लड़की को जानते हैं ना लड़की के माता पिता को जानते हैं। We would check up with them as to then how does the MLC show that this girl was raped and you were present in that situation, you confessed to the police, there's so much of evidence against you. रेप में सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर सजा नहीं होती, उसमें तो आपके पास पूरा मेडिकल एविडेंस होता है। After examining can decide that yes, person has been raped. देखिए बलात्कार तो हुआ है इनके साथ। बलात्कार नहीं करा, इसे खाली नींद में उंगली डाली इसके। मैं उस लड़की से प्यार करता था, यही जुर्म हुआ, बाकी और कोई जुर्म नहीं हुआ। हमने कुछ ऐसा किया नहीं, झूठे केस में हमें फंसाया गया था। उसमें तो हमारा जो है ना कोई भी ऐसा रोल नहीं था। दारू पी रखा था, लड़की को जेल उठा के ले गया था मैं। हम कानून को जो है ना गलत नहीं ठहराते, जितना हमारा जुर्म था उन्होंने उसी हिसाब से वो कलेक्शन निकाल दी। कानून जानते हुए अपराध किया। चलो मैडम जी, हमने तो कर दिया, हम तो अपने किए की सजा काट रहे हैं। रेप के क्राइम में लोग हैं, उसमें थोड़ा सा क्या रहता है कि हमारे जेल में भी उन लोगों को घृणा के साथ देखा जाता है। यहाँ जेल में आने के बाद उसको इतना हीन भावना से देखा जाता है कि ये आदमी क्षेत्रगा है, इसने औरत के साथ ऐसा किया है। सबसे बड़ी सजा तो ये है कि बीता ने गंदा काम किया है। मेरा खुद अंकल बोल गया कि तू इसकी जगह अगर मर्डर कर देता ना। किसकी जगह? बलात्कार की जगह कोर्ट में बोल गया था कि अगर इसकी जगह तू मर्डर भी कर देता ना तो मैं तेरे को छुड़वा लेता, किसी भी कीमत पे, चाहे जितना पैसा लगता, घर बेचना पड़ता, खेत बेचना पड़ता, हम लोग तेरे को छुड़वा लेते। लेकिन तूने ऐसा कराया कि हमारा नाक कटवा दिया। तो यहाँ आजकल क्या चल रहा है कि भाई को मार दो साले को, बाप को मार दो साले को, जिसने फंसवाया उसको मार दो। क्राइम जो है, क्राइम में जो है आदमी वन वे स्ट्रीट, सिर्फ आदमी जा सकता है, वापस नहीं आ सकता क्राइम से। क्षेत्र का मुकदमा ठीक है, एक लग गया उसको भुगतो, लेकिन जेल में आने के बाद आदमी एक हार्ड क्रिमिनल हो जाता है। He is much more hardened right now. He has also learned to be far more clever. He will be far more careful and a far better criminal when he comes out after a short sentence of 7 years. I would recommend something like not less than 20 years, and after that he has to report to the police station every week wherever he goes, even if he shifts his residence. A punishment that shakes him to the very core of his being, something like castration. निश्चित तौर पर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। Gut instinct is to react and say yes, punishment for rape should be severe, it should be nothing less than death. बलात्कार एक ऐसा अपराध है जिसके लिए सजाए मौत होना चाहिए।